ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಓಎಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶೈನ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಬೀದರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. DYSP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಷಾಬಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ರಘುವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಜ್ಡಮ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಆಸಿಫುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೈನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಎಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್ ಸಿಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ SP ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ जिला पुलिस वतीಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आज के इस सुंदर और शाम के टाइम पे हमारे SP साहब, एडिशनल SP साहब, DSP साहब के गुजारिश पे हमने यहाँ पे एक सोशल मीडिया और साइबर क्राइम अवेयरनेस के बारे में कार्यक्रम का अरेंजमेंट किया है. इस कार्यक्रम के अध्यक्षता हमारे SP साहब थोड़ी देर में आते आ रहे हैं. अभी फ़िलहाल हमारे एडिशनल SP साहब, DSP साहब, शन सर्कल साहब, हमारे बीदर टाउन सर्कल साहब यहाँ पे उपस्थित है और विडम कॉलेज के चेयरमैन साहब उपस्थित है, शाहीन पटेल साहब उपस्थित है. सभी को हमारे बीदर टाउन पुलिस स्टेशन की तरफ से और सर्कल साहब की तरफ से DSP साहब, सभी को आप सब अपने एक कीमती समय निकल के यहाँ पे आए. आप लोग सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. आज यह विशेष कार्यक्रम रखने का वजह क्या है बोलने से, आज के दिन में सबसे ज़्यादा क्राइम साइबर क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल है. छोटे बच्चे से लेकर पूरे बूढ़े बुजुर्ग तक सब आजकल मोबाइल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चों के क्लासेस मोबाइल के अंदर चलने की वजह से हर बच्चों के हाथ में अभी मोबाइल आ गया. अभी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं कि हमारे से भी ज़्यादा बच्चों को मालूम है मोबाइल के अंदर क्या क्या फीचर्स है बोलकर. और उसको क्या है
मोबाइल को अंदर जो क्राइम करने वाले भी ज़्यादा हो चुके हैं इसमें। जितना मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया उतना मोबाइल में चोरी करने वाले भी ज़्यादा हो गए लोग। हमारे देश में ऐसे कई नेटवर्क है जो लोग मोबाइल के अंदर ठगी करके डेली लाखों रुपए कमाते हैं उन लोग, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे आदमी अनपढ़ आदमी सब इसका शिकार बनते जा रहे हैं। क्योंकि बहुत पढ़े लिखे आदमी भी क्या हो जाता है कि एक बार उनको कोई काम के वजह से कोई टेंशन में रहते, वो उस टाइम में किसी का फ़ोन आ जाता है, वो ऐसा फ़ोन करते हैं कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाता है ये आदमी SBI बैंक से ही किया होगा बोलकर। वो क्या हो जाता है, हम गलती से उसका OTP पता देते, जो भी OTP बनाने के बाद उससे जो भी नुकसान होता है आप सभी को देख रहे हैं। अभी लेटेस्ट अभी एक 10 दिन पहले एक मेरा फ्रेंड है आर्मी वाला, रिटायर्ड होके आया, उसको एक दूसरा आदमी क्या किया बोलने से ऐसे ही व्हाट्सएप पे एक ट्रैक्टर डाला, बोला तेरे को ये ट्रैक्टर में 3 लाख रुपए दिला दूंगा, मुझे 2 लाख रुपए भेजो बोलकर। ये आदमी क्या कर दिया, उसी दिन उसको 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में। उसके 10 मिनट के बाद देखने से अकाउंट किसका है बोलकर भी अभी पता नहीं चल रहा उसका। ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस साइबर क्राइम के बारे में हमारे पास PI साहब आए, इसमें सबसे डिटेल में बताते साहब। आप सब अभी आगे का जो प्रोग्राम है हमारे शन PI साहब करेंगे बोलकर उनके गुजारिश करते हुए मेरे 2 बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। मोबाइल के अंदर एंटीवायरस सिस्टम, और अगर मोबाइल हमारा कहीं खो जाता है तो उसको कैसे हम पता लगाना, इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। AT&T मोबाइल एप्लीकेशन जो आपका मोबाइल कहीं गुम गया तो भी इजीली मिलेगा। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, AT&T एप्लीकेशन में सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिसके भी हो, उस पर फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड बोल का नेम आता, उसके अंदर 2 नेम सेव करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको प्रोफाइल में जाके चेक करना पड़ता। आप चेक कर ले तो आपके फ्रेंड के जो भी नंबर है सेव हो जाते हैं। इसके बाद में आपको होम में जाके फ्यूचर देखना, इसमें आता है लैंग्वेजेस, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में मल्टी फंक्शन में क्या होता है, स्टॉप USB कनेक्शन। जो भी आपका मोबाइल घुमा या किसी को मिला, आप जिसको मिला वो मोबाइल शॉप में जाके या USB कनेक्शन करेगा, आपका डेटा चुराना चाहेगा तो स्टॉप USB कनेक्शन क्या करेगा, उसकी फ़ोटो, उसकी लोकेशन, फर्स्ट फ्रेंड आपके सेकंड फ्रेंड के नंबर पे उसकी फ़ोटो लोकेशन देगा। इसके बाद में नेक्स्ट फीचर डू नॉट पावर ऑफ, इसको ऑन करके रखे तो आपका मोबाइल जिसको मिला वो स्विच ऑफ भी नहीं कर पाएगा। अगर स्विच ऑफ भी होगा उसका फ़ोटो, उसका लोकेशन फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड के नंबर पे चले जाएगा। और सेंसर रेटिफिकेशन, इसमें क्या है, फर्स्ट आपको पिन सेट करना पड़ेगा। अब ये क्या है बोलो तो आप कहीं मोबाइल रखे हुए हैं, आपको याद नहीं, आपका मोबाइल कोई उठाया तो आपको पता लेगा। ये देखिए ये देखिए, आपका कोई भी अगर मोबाइल लिया तो ऐसे सायरन देना लगेगा। इसकी वॉल्यूम भी कम नहीं होगी, और आप फ़ोन बंद करें तो इसकी भी वॉल्यूम भी कम नहीं होगी। देखिए इसको पैटर्न डालने के बाद ही बंद होगा। पैटर्न तो आपको ही याद रहेगा ना। इसका नेक्स्ट फीचर है चार्जर डेप्थ प्रोटेक्शन। आप कहीं चार्ज लगा के रखे हुए हैं, समझ लीजिए कहीं सफ़र में हो या कहीं भी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे हो, आपका चार्ज हो गया, कहीं भी आप चार्ज लगा के रखें हैं, आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसको पिन सेट करके चार्ज को ऑन करके रखेंगे। आपका जैसा ही कोई भी चार्ज से पिन निकालेगा उसका अलार्म बजना चालू होगा। जैसा भी बजा ना वैसे ही बनना चालू होगा ये। और आप मोबाइल को भी ट्रैक कर सकते हो। AT&T ट्रैक बोल के मोबाइल किसी का भी मोबाइल लेके मैसेज करें ना तो ऑटोमेटिकली मोबाइल ये ट्रैक कर लेगा। और उसमें वुमेन सेफ्टी भी है। समझ लिए कहीं लेडीज़ अकेले सफ़र कर रहे हैं तो इसको क्या है, स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन को 5 बार प्रेस करना तो ऑटोमेटिकली उसकी फ़ोटो, उसकी लोकेशन आपके फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड के मोबाइल पे चले जाएगी। लिंक भी जाएगी, लिंक को ओपन करके देखना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो, उसकी लोकेशन। सबको सलाम। ये पहली बात हम थोड़ा देर से आ गए, वो माफ़ी चाहते हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम क्राइम प्रिवेंशन मंथ,
या हर साल हम दिसंबर महीने में ये क्राइम प्रिवेंशन मंथ मनाते हैं। इसको क्राइम कंट्रोल करना, प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम करना, ये हमारे सब कॉलेजेस, हाई स्कूल कॉलेजेस और इधर किधर बच्चे रहते हैं उधर सब जाके उनको अवेयरनेस करते हैं। सोशल मीडिया और साइबर क्राइम बोले तो ये क्रेडिट कार्ड, बैंक से मोबाइल से पैसे निकालते हैं, उसके बारे में गिफ्ट आया बोल के वो पासवर्ड मांगते हैं, उसके बारे में। और मतलब फ्रॉड, आपको बहुमान लॉटरी लग गया ऐसा। अभी कैसा कर रहे हैं चोर लोग, वो उनके मोबाइल लेते हैं, उसमें टाइप करके उसमें से ये पैसे निकाल रहे हैं। और सोशल मीडिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक ये सन बोल के ये हमारा इंस्पेक्टर है, ये साइबर क्राइम देखते हैं। और एक है सोशल मीडिया, अब ये डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग व्हाट्सएप में है, कितने लोग फेसबुक में है, क्या क्या लोग किधर किधर मैसेज भेज रहे हैं, वॉच करने के लिए रखे हैं। अभी फेक न्यूज़ का वॉच करते रहते हैं, फेसबुक चैनल्स, यूट्यूब, ये सब वॉच करते रहते हैं। अगर कोई गड़बड़ मैसेज भेज दे उसको पकड़ देते हम, मालूम होता हमको कौन कर रहा है, किधर से कर रहा है, कहाँ है उन्होंने, सब पता निकालते हम। वो हमारा सोशल मीडिया बोल के ऑफिस में है, हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रहता है। ये पैसे का आपको अभी पैसे निकाला तो वो साइबर क्राइम। अभी तो चोरीगिरी कम हो रहा है, अभी बहुत ही इसमें ही जा रहा है, मोबाइल में पैसा जा रहा है, मोबाइल से पैसे मार रहे हैं सब लोग। OTP मांगते हैं, वो डाल देते हैं, खलास ऐसा। A very good evening to one and all present here. First of all, I would like to thank from the bottom of my heart to all the police departments who are sitting on the dais and have organized such a wonderful and informative session for all the people. So I would like to request to please give round a hand of applause to all the people sitting on the dais. Second, school owners who have taken initiative and have come forward to show respect, to pay respect and tribute towards our police department. So I would also like to request you all to please give round of applause to all the school owners sitting here. सब में पहले ऐसा होता है कि कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि कोई भी एक चीज़ ऑर्गेनाइज किया है तो उसको बैठ के सोचिए, एनालाइज किए कि क्यों ऑर्गेनाइज किया है, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन, उसका होमवर्क करके आना है। तो जब तक हम होमवर्क नहीं करते हम किसी को कुछ बता नहीं सकते। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है साइबर क्राइम के बारे में, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें होमवर्क करके आना चाहिए कि क्यों ऑर्गेनाइज किया है, क्यों बुलाया है, उसके सवाल जवाब सब लेकर आना है। तो आज ये मेरा छोटा सा होमवर्क है जिसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफ करना पसंद करूँगी। मैं एक काउंसलर भी हूँ, एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। काउंसलर होने के हिसाब से जो केसेस मेरे सामने आए हैं, मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगी और पेरेंट्स को और स्कूल वालों को क्या करना है, ये चीज़ें उनका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सब में पहले चीज़ होती है स्कूल वालों को, चेयरमैन्स को, मैनेजमेंट को, ये होता है कि स्कूल का मतलब हम ये समझते हैं कि तालीम देना, एजुकेशन देना। मेरा सवाल ये है कि एजुकेशन देना काफ़ी है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स कहाँ हैं, स्किल्स कहाँ हैं, बच्चों में वैल्यूज़ कहाँ हैं, मॉरल्स कहाँ हैं? तो एज ए स्कूल आप लोगों को इनिशिएटिव लेना है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें बच्चों के लिए जहाँ पे अवेयरनेस के प्रोग्राम हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बात अगर करूँ मैं साइबर क्राइम की, तो आजकल ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे बच्चे इतने सारे लगे हैं कि सारे रिश्ते भूल गए हैं। सोशल मीडिया की तरफ से पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं, पेरेंट्स को सवाल जवाब देने लगते हैं, यहाँ तक कि टीचरों पे हाथ उठाने भी लगते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आप लोगों की, हम लोगों की, और जो ये नेक काम कर रहे हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हम सबको मिलकर हमारे यूथ को
संभालना है, हमारे देश को संभालना है। अगर हम देश को नहीं संभाले, आज के नौजवान बच्चों को नहीं संभाले, तो लीडर्स कैसे बनेंगे? तो सब में पहली टिप है कि स्कूल वालों को ऐसे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे सोशल मीडिया ही टॉपिक हो। सब में पहले जो है, स्कूल में हर दिन बच्चों के बैग्स चेक होने चाहिए, जहाँ पे आपको सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं बल्कि गुटखा, सिगरेट्स और अल्कोहल सब निकलता है। बैंगलोर में रीसेंट न्यूज़ है कि 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के बैग से अल्कोहल, सिगरेट्स, टोबैको और यहाँ तक के कॉन्डम्स भी निकले हैं। तो ये किसको देखना है? अगर पेरेंट्स भी नहीं देख रहे, स्कूल वाले भी नहीं देख रहे, टीचर्स भी नहीं देख रहे, तो देखना किसको है? तो सब में पहले बच्चों के बैग चेक करिए और मंथली वंस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तालीम तो कोई भी हासिल कर लेता है, लेकिन अखलाक और वैल्यूज कहाँ से लाएंगे? और दूसरा ये होता है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या है? हम पेरेंट्स को सिर्फ तब बुलाते हैं स्कूल वाले जब हमें पीटीएम की जरूरत होती है या फिर फीस कलेक्ट करने की जरूरत होती है। कौन सी स्कूल है जो हर महीना पेरेंटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है बिना उसको मिस किए हुए? ड्रग्स के बारे में बात करें, अपब्रिंगिंग के बारे में बात करें, सोशल मीडिया के बारे में बात करें। बच्चों को 2-2 घंटे मोबाइल देके छोड़ देते हैं और देखते भी नहीं कि मोबाइल में हो क्या रहा है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना है और ये टॉपिक्स पे बात करनी है। और तीसरा आता है काउंसिलर्स। एज ए काउंसिलर मैं आपको ये बताना पसंद करूंगी कि हर स्कूल में काउंसिलर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे एडिक्शन में जा रहे हैं। कौन सा एडिक्शन? सिर्फ मोबाइल फोन का एडिक्शन नहीं, ड्रग्स एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, मोबाइल फोन में और बहुत चीजें होती हैं, एडिक्शन की तरफ गुजर रहे हैं। हम हमारे स्कूल में माफ करना, मैं तारीफ पे नहीं बता रही हूँ, हमारे आसिफुद्दीन सर जो है मुझे इसलिए लाए हैं ताकि मैं बच्चों की काउंसलिंग कर सकूं नर्सरी से लेके कॉलेज लेवल तक, और ये होना जरूरी है। और बैड टच और गुड टच आजकल क्या क्या नहीं हो रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट आम हो गया है। कॉलेज के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे लड़कियों के पीछे हैं। किस लिए है? क्योंकि हम अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं ला रहे। और गुड टच, बैड टच के बारे में किस उम्र से अवेयरनेस प्रोग्राम देना है? मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, कौन सी उम्र है जहां पे अवेयरनेस पैदा करना है? सेक्सुअल टच क्या है? एनीवन प्लीज? यस, एग्जैक्टली 7 साल की उम्र में बैड टच और गुड टच प्रोग्राम स्टार्ट कर देना है। और बच्चा जैसे ही टीनेज जाएगा, 7th पास हो गई, 8th जाएगा, उसकी प्यूबरिटी एज आ जाएगी, तो अब उसको सेक्सुअल क्लासेस, सेक्सुअल प्रोग्राम्स देना है कि ये है क्या? तब जाके आप एडिक्शन को और बुरे रास्ते को रोक सकेंगे। तो ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो तो उनका काम कर रहे हैं, ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, स्कूल्स का काम है, टीचर्स का काम है, पेरेंट्स का काम है। इसके अलावा एक और 2 चीज़ें मैं बता के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारे सर ने कहा कि बहुत सारे फ्रॉडिंग आ गए हैं, OTP आ गए हैं, तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे लोन ऐप्स आ गए हैं, चाइनीज ऐप्स बोलते हैं जिसको। ये धोखा मेरे फैमिली मेंबर के साथ भी हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी ताकि कोई दूसरे उस जाल में ना फंसे। कई बार ऐसा होता है कि मंथ एंड आने से पहले सैलरी ख़त्म हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, लोन लेना शुरू करते हैं। तो चाइनीज़ के ऐसे ऐप्स आए हैं जहाँ पे 100 रुपीज़ क्रेडिट लोन, 5000 क्रेडिट लोन, 1000 क्रेडिट लोन, इंस्टेंट डिपॉजिट टू योर अकाउंट्स। और वो सिर्फ 2 चीज़ें पूछते हैं, आपकी फ़ोटो और आधार कार्ड का फ़ोटो, और उसके बाद पूछो मत क्या दर्दनाक अजाब मिलने वाला है आपको। मेरी बहन के साथ इतना सारा फ्रॉडिंग किया, इतना सारा चीज़ें हुई कि वो मेंटल स्ट्रेस में चली गई। मतलब उनकी फ़ोटो सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके 1000 कॉन्टैक्ट्स को ये फ्रॉड है करके भेज देंगे। जब तक नहीं स्टॉप करेंगे, जब तक कि आप उनको पैसा नहीं देते। और बहुत सारे लोग सुसाइड्स भी किए हैं। तो ये चाइनीज़ ऐप, ये लोन ऐप्स और बहुत सारी चीज़ें, ये गलत है। और इसके अलावा भी आजकल जो स्टेटस रखते हैं, इंस्टाग्राम में फीड करना, फेसबुक में फीड करना, स्टेटस में रखना, ये आजकल क्या रख रहे हैं, बच्चियाँ अपनी फ़ोटोआँ रखती है, तो क्या होता है,
उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो ये पेरेंट्स को देखना है, अवेयरनेस लाना है कि क्या रखते हैं बच्चे स्टेटस में। कितने सारे स्कूल वाले हैं जो कि मोबाइल फोन्स चेक करते हैं, कितने सारे पेरेंट्स हैं जो मोबाइल फोन्स और डेटा हिस्ट्री चेक करते हैं। गलतियां हमारी है और हम दोषी बच्चों को देते हैं, नहीं है। वक्त आ गया है, मैं फिर से अपने तहे दिल से ये सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये हाई नीड है, हाई प्रायोरिटी है। अगर हमारे बच्चों को एक अच्छा प्रोफेशन ज़रूरी नहीं है, कोई भी बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, एक अच्छा, एक सच्चा, एक ईमानदार, एक लीडर अगर कोई बनना चाहता है तो पूरी मुट्ठी को बंद होना पड़ेगा। अलग अलग उंगलियां से काम नहीं चलता। एक उंगली भी छूट गई तो मुट्ठी नहीं बन सकती, पूरी उंगलियों को मिलके मुट्ठी बनना पड़ता है और सारे लोगों को इस चीज़ पे अमल करना पड़ता है। तो एक छोटी सी चीज़ बोल के मैं ख़त्म करूँगी। जब से मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने गरीब हो गए। शुक्रिया। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಸತ್ತಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಸತ್ತಾರ್ ಸಾಹೇಬ್। सबको आदर। ये जो ज़माना है मोबाइल का ज़माना है। 5 मिनट में कौन सा भी अफवाह या गलत मैसेजेस 5 मिनट में ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो जाता है, लेकिन हम वो चेक नहीं करते सही है या गलत है। बहुत सारे मैसेजेस, गलत मैसेजेस ऐसा स्प्रेड करते हैं, कोई भी उसका वेरीफाई नहीं करते उसमें सच कितना सही है। हम भरोसा करके उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो। आप लोगों को इसलिए बुलाया आज, आप लोग स्पेशली टीचर्स बहुत आसानी से बच्चों को रीच होते हैं। आप लोग ऐसा हर रोज़ क्लास में 10 मिनट या 2 मिनट, क्योंकि बच्चे आजकल का बच्चे ऐसे इतने मोबाइल को एडिक्ट होके दूसरे कौन सा भी बड़े लोगों का नशा छुड़वा सकता है, लेकिन ये जो एडिक्शन है ना मोबाइल का, वो बहुत मुश्किल हो गया है छुड़वाना। आप लोग उनका सहकार मिले तो बहुत अच्छा होता है। सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बड़े लोग भी। रिसेंटली आप सुने होंगे बसु कल्याण के एक मैडम लेक्चरर थे शायद, ये मोबाइल का वो जो झूठा मैसेजेस का शिकार हो गए, उन्हें खुदकुशी करना पड़ा। शायद 5-6 लाख रुपए गंवा लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थे शायद, उतने पढ़े लिखे सो लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। हर रोज़ हमारा सेन पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट्स इतने आते हैं। सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं हैं, हम पढ़े लिखे से लोग, कौन सा भी मैसेज आता है वो लिंक दबाता है, पैसे गंवा लेते हैं। हमारा मोबाइल को भी आते हैं, आपको 25,000 रुपये, 25 लाख डॉलर्स प्राइज़ आया है, वो कंपनी का, ये कंपनी का। हम लालची में वो अगर वो लिंक्स दबाया, हम उनका शिकार हो जाते हैं। और फेसबुक में अच्छे लड़कियों का फ़ोटो डाल के उनको 1 महीना 2 महीना ऐसा चैटिंग करते हैं, बाद में वो पैसे डालना शुरू करते हैं। डालते उसको मालूम ही नहीं होता कितना पैसा डाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आप लोग इतने लोग
10 लोगों को बोले तो हजारों लोगों को बोल सकता है। हमारा ये मैसेज मकसद यही था। अभी डायरेक्टली चीटिंग करना बंद हो गया, बहुत कम हो गया। पहले शुरुआत में पहले हम देखते थे ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट्स पे चीटिंग करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, ये मोबाइल का इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट पे लाखों रुपए बैंक से हम गायब हो जाता है 2 मिनट में। इसलिए आप लोगों का हम मदद मांग रहे हैं। सबको आज का फंक्शन का, आज का ये जो कार्यक्रम का थोड़ा मैसेजेस भेजे तो बहुत अच्छा होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हाल में विजडम स्कूल में पढ़े सो एक बच्चा मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, IIT दिल्ली में एमटेक कर रहा है शायद। हमारा हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू चेयरमैन ऑफ द विजडम स्कूल एंड मैडम। सबको आप लोगों का योगदान बहुत रहता है इसमें। वो बच्चे वहाँ तक रीच होने के लिए आप लोगों का योगदान बहुत है। इतना बात करते हुए मेरा ये बात ख़त्म करता हूँ। सबको ಧನ್ಯವಾದ। ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೆಟ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ। आज के इस मौके पे हमारे एडिशनल एसपी साहब, DSP साहब, सर्कल साहब और सभी मेरे दोस्त और आप आने वाले के स्वागत करते हुए आज की जो ये रखा गया है सोशल मीडिया के ऊपर, जो आजकल जो भी हो रहा है सोशल मीडिया से लोगों को कितना तकलीफ़ हो रहा है। अभी बहुत अच्छी तो ये बच्ची बहुत अच्छी बात करी। मैं उनका सुनते सुनते ही मैं उनका थोड़ा सा ज्ञान मेरे को भी आ गया। ऐसा प्रोग्राम होने से लोगों को मालूम भी होता है, ऐसा ये भी होता है। और आज के ज़माने में कोई चीज़ रहे तो नहीं रहो, खाना नहीं रहे तो चलता है, लेकिन मोबाइल नहीं रहे तो नहीं चल रहा, ये सिस्टम हो गया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या आ रहा है, अभी मैसेजेस आते, व्हाट्सअप आते, इतने व्हाट्सअप आते, इतने मैसेजेस आते, देखने में पूरा दिन 24 घंटे पे अगर हम देखते रहे तो वो व्हाट्सअप भी ख़त्म नहीं होता, मैसेज भी ख़त्म नहीं होता। और कुछ ऐसे चैनल्स आ रहे जो यूट्यूब पे होंगे या गूगल पे होंगे, कोई न्यूज़ बोल के बताता, कौन सा की न्यूज़, जैसा NDTV है, जी न्यूज़ है, वैसे कौन सा तो एक टीवी का नाम आता, उसमें क्या भी खबर आता है। ऐसा खबर आता है कि उससे मैं अगर वो दिमाग में लिया तो मेरा दिमागी चीज़ चेंज होता बोले जैसा हो जाता। या कम्युनिज्म बोलो, देश के बारे में बोलो, कोई चीज़ के बारे में बोलो, आजकल तो इतना ये हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जो सो इससे बहुत ख़राब हो रहे हैं। बच्चे भी उतने ही ख़राब हो रहे हैं, बच्चे भी उतने ही ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जो मैसेजेस, जो ये हमारे व्हाट्सअप है, जो भी है, उसमें से हम देखने को तो देखते हैं, देखने के बाद कभी कभी ऐसा कर देते हैं उसको, अरे इसको फॉरवर्ड कर दो। ये वो भेजने वाले से भी ज़्यादा ये जो हम फॉरवर्ड करते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। लेकिन हम सोचने के बाद जहाँ तक है उसको ख़त्म करने का कोशिश करना, उसको फॉरवर्ड करने का कोशिश नहीं करना। अच्छा न्यूज़ जल्दी फैलता नहीं, गलत न्यूज़ सेकंड में फैल जाता है, मिनट नहीं लगते, सेकंड ही तो लग जाते हैं। अच्छे मैसेज उसको जो सो दिन भर लगते पहुंचने आने के वास्ते। लेकिन हम अपने घर में हों जो बच्चे, आजकल बच्चे भी बगैर इसका नहीं चल रहे। उससे ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो, जब कोविड आया था तो स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन ही चला सब क्लासेस, तो उसलिए मजबूरन होके माँ बाप जो है सो ये दिलाना पड़ा मोबाइल्स देने के बाद क्या हो गया, वो बच्चे, हम क्या समझते हैं बच्चे जो सो वो लेके पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे क्या कर रहे हैं हमको भी मालूम नहीं होता।
उसलिए आज के जवान बच्चों को होंदो ये होंदो इसके ऊपर केयर करना बहुत ज़रूरी हो गया। कौन सा भी न्यूज़ आंदो पहले उसके ऊपर हम थिंक करके उसको ये करना। फॉरवर्डेड मैसेज का क्या ही मीनिंग नहीं है, कितने भी देखो फॉरवर्डेड मैसेज बोल के चाहता, कोई भेजे सो मैसेज नहीं आता, फॉरवर्डेड मैसेज बोल के आता। उससे तो ज़्यादा आजकल यूट्यूब और इसमें स्टेटस में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसलिए हम उससे जागरूक होना बोल के मैं बोलते हुए मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. सभी को आदाब। बिदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम में सोशल मीडिया एंड साइबर क्राइम में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, पहले तो मैं दिल से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज के हालात में मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा करें तो उसमें अच्छा भी है बुरा भी है, तो उसमें जो अच्छी चीज़ है उसको ले लो, बुरी चीज़ को छोड़ दो। मेरी खासकर ये यंगस्टर्स से, नौजवानों से गुजारिश है जो मोबाइल में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, अपने आप को स्पोर्ट्स में और जो है ना आज के जो है माहौल में जो हम खा रहे हैं फूड, बिल्कुल तकरीबन वो फर्टिलाइज़र खा रहे हैं। एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, ये नहीं तो हमारे अखाड़े में आइए, फ्री कोचिंग है हमारे अखाड़े में सर सभी यंगस्टर्स को। तो लिहाजा ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है आज के हालात में, ताकि जो आज गलत हो रहा है उसको सही कर सकें। मैं इस मौके पे एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से भी देना चाह रहा हूँ कि अगर जाने वाले रास्ते से कोई भी आपका जो है मोबाइल पूछता है तो आप डायरेक्ट उसके हाथ में मोबाइल मत दीजिए। आपको अगर उससे बात करना है बोले तो पूछ कर क्या नंबर डायल करना है वो आप हाथ से डायल करके वो कट करिए, क्योंकि ऐसे हादसे हो चुके हैं। वो एक बार जब लगाता है तो मिस कॉल स्विच ऑफ बोल कर आता है, और दूसरी बार लगाने के बाद आपके जो है अकाउंट में से पैसा निकलना चालू हो जाता है। ऐसे कई से हादसे हो चुके हैं। और ख़ासकर नौजवान कुछ ये ऑनलाइन के जो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि कईयों बार मैं देख चुका हूँ कईयों नौजवान, 1-2 लड़के यहाँ पे फांसी भी ले लिए हैं सर। एक मैटर हो चुका है, हमारे ट्रांसपोर्ट के रिश्तेदार थे। तो लिहाजा मैं सभी लोगों से, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ चलें, गलत रास्तों को छोड़ दें। और इस मौके पे हमें यहाँ पर जो बुलाकर जो दो बात करने का मौका दिए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮಾಸಾಚರಣೆಯ केंद्र बिंदु हमारे एडिशनल सर DYSP सर और जो यहाँ पे विजडम कॉलेज के प्रेसिडेंट और सब यहाँ पे जो बैठे हुए मैडम और जो भाई लोग, सबको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूजुअली अभी तक सब लोग भी साइबर क्राइम के बारे में बोल दिए। एक्चुअली हम सब कमाते हैं इसलिए कि हमारा फ्यूचर ठीक हो। जो हमारा पैसा बचा हुआ है वो पैसा फ्यूचर में काम को आए, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए या हमारे बुढ़ापन में काम आने के लिए कर देते हैं। मगर हमारे कुछ चंद गलतियों की वजह से जितना भी हम जमा कर रहे हैं, जितना भी दिन रात मेहनत करके जो पैसे रख रहे हैं, वो पैसे खाली सिर्फ पलकों में चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है वो हम ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे को जो मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल कैसे यूज़ करना है, कैसे सिक्योरिटी से यूज़ करना है हमको पता नहीं है। वो बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप सब देखते होंगे, आप अगर कोई ईमेल यूज़ करता है तो आप अपने ईमेल इनबॉक्स को चेक करिए, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि तुम किसी को पूछे नहीं रहते, कुछ कर रहे थे, आपको यू हैव 150,000 बोल के मैसेज आया रहता, 50 लाख आया रहता, करोड़ आया रहता। तो ये कोई भी देने वाला नहीं है, चुप रंग बिरंगे कहानी सपने बताते हैं। देखिए, हमारा घर को ताला लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं ताला? कोई दूसरा बाहर एंट्री नहीं करना मिलके, है ना। सो सेम थिंग हमारे, अगर हम बैंक के अकाउंट में पैसे रखने के बाद अगर तुम कुछ इंटरनेट बैंकिंग या UPI कुछ वॉलेट यूज़ करें तो आपका जिम्मेदारी है कि आप उसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है आपको मैं एक इम्पोर्टेंट ये बोलता हूँ, आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं है,
कोई भी समझो कितना भी ब्रिलियंट, बहुत से बहुत ब्रिलियंट है बोले तो वो आपके जानकारी लिए बिना हैक नहीं कर सकता। मैं बोले कि समझ में आया ना? आपके पास से वो जानकारी लेगा, लेने के बाद ही आपका अकाउंट हैक करेगा। विदाउट तुम कुछ उसे इंफॉर्मेशन नहीं दिए तब तक कोई भी नहीं करेगा। कितना भी बहुत एक्सेलेंट हैकर्स है बोले तो वो आपके साथ मिनिमम 15 to 1 मंथ आपके साथ दोस्ती करेगा, आपके लाइक्स डिसलाइक्स देखेगा, आप किसके साथ फ्रेंड्स है क्या है सब करेगा। करने के बाद उसे पता चलेगा कि तुम्हारा पासवर्ड ये हो सकता है बोल, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक इम्पोर्टेंट ये बोलता हूँ, किसी भी हालत में आप अननोन पर्सन को या थोड़े एक 8 दिन 10 दिन में जो पहचान होगा उसके साथ में ज़्यादा घुल मिल के अगर आपका इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए तो समझो आपका अकाउंट को खतरे में लाएंगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, सबके पास अभी आज के ज़माने में कैसा है, सब जाके बैंक में जाके क्यू लग के पैसे नहीं ला सकते। सबके पास वॉलेट्स है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे और अमेज़न पे, सब दूसरे कुछ भी है। आपको एक रिक्वेस्ट है, आपका जिसमें ज़्यादा पैसे रहता है, मतलब आपका सैलरी अकाउंट है या दूसरा है, वो अकाउंट क्लियरली सिर्फ बेसिक जब पहले कैसा था ना वैसे अकाउंट यूज़ करो। और एक अकाउंट क्रिएट करो जहाँ पे उसके अंदर आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 मैक्सिमम या 15,000 इतने ही पैसे रहना है। इन केस अगर कुछ भी खतरा हो गया या कुछ ऐसे ही चुप चला गया तभी आपको सिर्फ मिनिमम लॉस हो जाता। ये एक बात ये ध्यान में रख लो, आपका अगर अकाउंट में सपोज 3-4 लाख थे या 5 लाख थे तो वो यूपीआई को कनेक्ट मत कीजिए। आपका दूसरा जो अकाउंट रहता है वो अकाउंट को ये करके उसको रिचार्ज करते रहिए। आपके अकाउंट रहता है उसके अंदर ये कर दीजिए। तो ये साइबर क्राइम सिर्फ 3 तरीके से आता है, एक विशिंग, दूसरा फिशिंग और तीसरा स्कैमिंग बोल के। विशिंग बोले तो आपको पता है, विश कर देते हैं कि नहीं आप इतना ढेर सारे इनाम जीत गए, आप ये कर दो बोल के विशिंग कर देते हैं। फिशिंग बोले तो फिशिंग हम करने के लिए कैसे एक कुछ गल को एक कीड़ा रख देते हैं, वो देख के फिश आके खाता है, ठीक है ना। तो वही टाइप में यहाँ पे क्या करते हैं, आपके नज़दीक आए जैसा, मतलब आप उसके नज़दीक आए जैसा कुछ आपको ऐसे ही बात बताएगा या कुछ कर देगा। मतलब आपको ऐसा अकाउंट में ऐसे पैसे आ जाते हैं, आप एक थोड़ा काम कर दे तो बस है आपको घर बैठे 50,000 रुपये पर मंथ आ सकता है बोल कैसे आपको फिशिंग करता है। और तीसरा रहा स्कैमिंग पहले बहुत था, अभी नहीं है। स्कैमिंग कैसा है बोले तो आपका ATM कार्ड का ATM के इसमें सेंटर में चले जाके एक डिवाइस बिठा रहता है वहाँ पे। वो डिवाइस बैंक का डिवाइस नहीं रहता, वो लोकल डिवाइस रहता है। उसके अंदर क्या कर देते, जो भी तुम पिन कोड एंट्री मार देते वो उसके अंदर रीड हो जाता है। आप चले जाने के बाद वो मशीन लेकर के आपका जो अकाउंट का इसमें ATM में जो डिटेल्स रहता है वो डिटेल्स हैक करके आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ये 3 तरीके से होते रहते हैं। और ये फ्रॉड का ऐसा ये है, आज एक चला तो 8 दिन में और दूसरा चले जाता है। मतलब नए अगर आप इसके बारे में और गए कि ये करने से ये फ्रॉड है बोल के पता चला तो वो दूसरा नया तरीका ढूंढ देते हैं। वो नया तरीका भी हम ट्रैक करना है। तो इसीलिए आपको बहुत से देखेंगे। अभी मैडम जी एक बात बोले, अभी रिसेंटली यहाँ पे बीदर में जो आ रहा है, ये लोन ऐप के बारे में बहुत केयरफुल होकर रहिए। जो लोन ऐप हम क्या समझते हैं, बैंक को लोन गए तो बैंक में अगर लोन लेना रहे तो तुम्हारे को बहुत मुसीबत है, वो डॉक्यूमेंट्स दो, ये डॉक्यूमेंट्स दो, 10 बार फिराओ। चलो यहाँ ऑनलाइन में सिर्फ तुम्हारे कुछ ईजी ये दे देते हैं। वो चाइनीज़ ऐप रहते हैं, चाइनीज़ ऐप में आपको लोन तो मिलता, मगर रिकवरी कैसे करता है बताओ। हमारे पास एक आदमी स्टेशन को कैसा है तो लिए सो सिर्फ 8,000 रुपये लिया, तो उन्हें रिपे कितना कराएंगे सोचो। 4 लाख से भी ज़्यादा रिपे करे तभी भी उसे छोड़ेंगे। तो अभी मैडम जी जैसा बताए, उनको क्या करते, जो औरत का फोटो रहता ना, या औरत हो या आदमी, उनका फोटो को एडिट कर देते, एडिट करके देते। मेन प्रॉब्लम बोलता हूँ, अभी उन्होंने किसको टारगेट करते पता है, आप उनका फ़ोन का चयन का जो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका फ़ोन उनके कब्जे में चला जाता है। मीन्स सब कॉन्टैक्ट सब उनके इसमें हो जाते हैं। उन्होंने कैसा चाइनीज़ के मोबाइल रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कौन है बोल के। आप अगर फादर, ब्रदर, मदर बोल के यूज़ करें ना, फर्स्ट उनको मैसेज चले जाता है। मतलब जो घर वाले रहते हैं उनको पहले जाता है, उसके बाद में दूसरे को जाता है। सो प्लीज़ उसके लिए चाइनीज़ ऐप को, कौन सा भी जो लोन ऐप रहता है वो लोन ऐप को लोन मत लीजिए। लोन लिए तो उसका अगर कोई रिपे कर रहा था तो उसे किरकिरी कर रहा तो सीधे हमारे पुलिस स्टेशन को आ जाए। और एक नंबर नोट रख लीजिए साइबर क्राइम का, ये टोल फ्री नंबर है, 24/7 कभी भी वर्क करेगा। 1930 ये नंबर को आप कभी भी कॉल करें तो, मतलब गोल्डन आवर बोल के जो रहता, अगर आपका बैंक के से कुछ पैसा चले गया, वो चला गया तो
अगर तुम ये हमारे को इमीडिएट 1930 को अगर कंप्लेंट रेज कर दिया तो हम अकाउंट फ्रीज कर देते, मतलब जिसके अकाउंट को गए रहता, तो वहाँ पे तुम्हारे को पैसे आने की चांसेस रहते। अगर तुम कितना देर करते हो उतना हमारे को चले जाता। क्या होता है, अकाउंट नंबर भी रहता, सब भी रहता, हम जाके अकाउंट कहाँ पे हो, सपोज गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश का अकाउंट रहता, उसके जाके हम अगर पूछे बोले तो वो आदमी रहता कोई काम करने वाला, लेबर काम करना रहता, उसके अकाउंट में 10 रुपये नहीं रहता, वो कोई दूसरा ऑपरेट करता रहता। सो इसीलिए 1930 को याद रख लो। ये 1930 से आप अगर कुछ भी आपको फ्रॉड हो गया तो ये करना है। और किसी भी हालत में नए आदमी के साथ में आप देखते होंगे OLX में बहुत से फ्रॉड होते हैं, शायद यहाँ पे किसी को भी हो गया होगा। OLX में कैसा करते थे, OLX में जो बाइक या कार रहता है, वो बाइक या कार का आपको फोटो बता देते हैं, सिर्फ फोटो बता देते हैं पार्किंग का, उसका कुछ भी नहीं रहेगा। नया गाड़ी रहता, नया व्हीकल रहता, और जो बेचने वाला रहता आर्मी की यूनिफॉर्म डाले रहता। हमारे सबको कैसा है, आर्मी में तो ट्रस्टेबल पर्सन, आर्मी आ रहा है तो ठीक है, सब बहुत अच्छा रहता बल्कि हम समझते हैं। तो वो जाके क्या करता है, आपको फोटो सेंड कर देता है, इसका इतना पैसा है इसका, तो अगर तुम पैसे इतना मेरे को भर दिए तो मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ बोल के ये कर देता है। आप क्या करते हैं, बिना जानकारी किए हुए, बिना उसके बारे में सोचे हुए क्या कर देते हैं, अगर वो गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी था, उसका रेट सपोज 2-3 लाख था, तो एडवांस में 20,000 देने क्या गलती है बल्कि तुम 20,000 उसके अकाउंट को डाल देते हैं। अगर तुम एक बार अकाउंट को डाल दिए, वो गाड़ी ना उसका रहता ना वो गाड़ी का फोटो रियल रहते, कुछ भी रहते वो खत्म कर देते। सो इसीलिए OLX में अगर आप ये करना रहते हो तो ठीक तरह से जानकारी करने के बावजूद ही उसके बाद में ये करना है। और तीसरी बात ये रही, बहुत से लोगों को आजकल कैसे कर रहे हैं बोले तो आपको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने चीट कर रहे हैं बोल के, फ़ोन में बात करते हैं, फ़ोन में बात करके सब आपका सब डिटेल्स ले लेते हैं। आप समझो आप कोई शॉपिंग करने वाले हैं, शॉपिंग के बारे में आप अगर नियरेस्ट शॉपिंग मॉल्स उसके बारे में अगर सर्च कर दिए तो बता देते हैं वो फेक रहता है। गूगल में जो सर्च इंजन में जो मशीन में रहता है, फेक नंबर फीड कर रहते हैं। आप अगर कॉल कर दिए, कॉल करके इतना सपोज एक 20-25 हज़ार का माल का ऑर्डर कर दिए समझ लो, तो वो माल को नहीं जाता, वो दूसरे को कह रहता तुम शॉपिंग का पहले एडवांस पैसे दे देते, पैसे देने के बाद तुम्हारे को ना माल आता ना कुछ आता। सो प्लीज़ इसके लिए अगर सिर्फ मॉल का एक ही नहीं बोल रहा हूँ, गूगल पे, फ़ोन पे या कोई भी वैलेट का जो कस्टमर केयर नंबर रहता वो गूगल में सर्च मत कीजिए, प्लीज़ गूगल में सर्च मत कीजिए। गूगल में अगर सर्च करें तो क्या होता, उसका फेक नंबर दूसरा रहता, वो जो ओरिजिनल नंबर रहता है, ओरिजिनल नंबर के बजाय दूसरा नंबर रहता है, दूसरे नंबर को कॉल कर दिए तो आप उसका शिकार हो जाते हैं। सो इसीलिए वो एक काम कर दीजिए। और बहुत से अभी बसों कल्याण में मैडम जो डेथ हो गया इनको सब चाहिए आपका लोन के वजह से ही हो गया है। सो इसी तरह से नंबर ऑफ केसेस, रोज तुम परेशान होते हैं कि कितने केसेस है। अभी रिसेंटली हमारे पास वो केसेस आ रहे हैं, कैसे है वो, तो एक अननोन नंबर से आपको फ़ोन आएगा, लड़का को या लड़की को आके, उसके बाद में क्या होता है, फ़ोन में तुम बात करते चाट करते वो करते उनका न्यूड फोटोग्राफी हो जाता, मतलब उन्होंने न्यूड हो जाते हैं, आप भी न्यूड हो जाते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, वो एक्चुअली वो कोई आदमी नहीं रहता या कोई लड़का नहीं रहता, लड़की नहीं रहता, वो सिर्फ रिकॉर्डेड मैसेज रहता। वो रिकॉर्डेड मैसेज को क्या करते हैं आप, डर के क्या करते हैं, वो वायरल कर देते हैं, सब फेसबुक में या सोशल मीडिया में स्प्रेड कर देते हैं, बल्कि वो कितना पैसे मांगता उतना पैसे आप देना शुरू कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, करने के बावजूद और एक फ़ोन करता, मैं साइबर क्राइम दिल्ली से बात कर रहा हूँ, अभी वो फोटो अपलोड कर रहे हैं, तुम इतना पैसा दिया तो नहीं, मैं उनके ऊपर केस कर देता हूँ, तो नहीं कर देता हूँ बोलता है। तो आपको वैसे अगर कुछ भी रहा तो तुरंत पुलिस स्टेशन को आके आपका कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ये कार्यक्रम को बीदर SP सर श्री किशोर बाबू सर को स्वागत करता हूँ आपकी ओर से। DYSP साहेब माने HOD साहेब ಹೋಗುವ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ अभी रिसेंटली एक बीदर के एक डॉक्टर मैडम है, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, उनको कैसे फ्रॉड होगा बल्कि आपको बताता हूँ। अभी OTP शेयर करना तो दूर की बात, उनको एक ऐप आ जाता है, मतलब ऐप इंस्टॉल करने के लिए एक मैसेज आ जाता है। वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद उनको मतलब लोन वगैरह देंगे बोल के ऐप इंस्टॉल करते हैं। अगर वो ऐप इंस्टॉल कर लिए तो उन्होंने ऐप इंस्टॉल कर लेने के तुरंत बाद उनका क्या होता है, मोबाइल स्क्रीन उनको शेयर हो जाता है। मोबाइल स्क्रीन शेयर हो जाता है
तो स्क्रीन शेयर होने के बाद वो क्या कर देते हैं आपका उनको कुछ नहीं बोलेंगे, आपका OTP नंबर आएगा या कुछ भी नहीं करेंगे, मैडम आपके अकाउंट में पैसे आए क्या चेक करो बोल के बोलते हैं। तो पैसे आए क्या चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, आपका पिन डाल देते हैं उसके अंदर। पिन डाल दिए तो जो पिन आप प्रेस कर रहे थे उनको पता चलता है कि वो ये है। तो तुम्हारा फ़ोन कट होने के बाद इमीडिएट वो जो आपका पिन रहता है वो पिन यूज़ कर लेके अकाउंट का पूरा जो पैसा रहता है सब खाली कर देते हैं। सो इसीलिए अगर कोई भी अननोन ऐप रहा तो प्लीज़ किसको भी लिंक मत कीजिए। अगर आप लिंक कर दिए तो उसको आपका जो मोबाइल में का सब डॉक्यूमेंट्स रहा, मतलब आपका जो भी फ़ोन पे, गूगल पे या बैंक का जो इंटरनेट बैंक का जो ये पासवर्ड रहता है वो सब पासवर्ड आपको उनको दे देते हैं। सो प्लीज़ इसीलिए अननोन ऐप्स को, अननोन लिंक्स को किसी भी वजह से नहीं करना है। और आजकल जो ये कोरोना आने की वजह से, पैंडमिक आने के बाद बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत से कर रहे हैं। सब हम इंक्लूडिंग हमसे, मेरे से पकड़ के सब हम अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं। फ़ोन देने के बाद बच्चे थोड़ा काम, मतलब पढ़ाई करने के बाद वो अननोन ऐप को डाउनलोड करते हैं, मतलब जो खेलने के ऐप रहते हैं वो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद वो पैसे पूछता है, मतलब इतना रेंट है बोल के। वो बच्चे को पता नहीं चलता कि आप, मतलब हमारे मोबाइल में, हमारे पर्स में से आके ATM लेके ATM के सब पिन कर देता है। पिन डालने के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि पैसे कट हो रहा है। वो बच्चे छोटे रहते हैं, अगर एक बार वो पैसे वो 14 डिजिट पिन मार के बाद में CVV नंबर बताया बोले तो हमारे अकाउंट पूरा खाली हो जाते हैं। सो प्लीज़ इसके लिए अगर बच्चे को कुछ ये करते तो आप अपना मोबाइल या आपका जो भी ATM क्रेडिट कार्ड रहता है वो ठीक तरह से ये करना है। और वही सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में कैसा है, आजकल सोशल मीडिया से हम दुनिया देख रहे हैं। हमारे घर के बाजू में क्या हो रहा है हमारे को पता नहीं चलता। जब फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप में कुछ आने के बाद तो ये बाजू घर के पास एक्सीडेंट हो गया बोल के जब पता चलता, तो हम वैसा उतना उसके ऊपर हम मजबूर हो गए हैं। तो एक आपको एक मैं ये करना रिक्वेस्ट करता हूँ, बिना सोचे, बिना उसके बारे में जानकारी पाए हुए आप किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड मत कीजिए। फॉरवर्ड करने से क्या होता है, अभी समझो कौन सा भी एक क्राइम हो गया है या कुछ भी कहीं तो हो गया रहता है, वो यहीं पे बिदर में हो गया है, या कितने 2-3-4 साल या 10 साल पहले कहीं पे दूसरे तरफ हो गया रहता है, वो यहाँ पे हो गया बल्कि वो शेयर कर देते हैं। हम क्या समझते वो या कौम के रहते या कोई जात के बारे में रहते, कुछ भी रहते, हम बिना देखे सोचे क्या करते थे, ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। वो ग्रुप में फॉरवर्ड करने से क्या होता, जो वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ही नहीं रहता, वो प्रॉब्लम है समझ के हम चूँकि इमेजिनेशन कर लेके बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो सोसाइटी में जो हार्मोनी है वो हार्मोनी को हम लॉस कर देते हैं। सो प्लीज़ इसीलिए, और सबको एक करता हूँ, हमारे सोशल मीडिया यहाँ पे बीदर में SP साहब के इसमें एक सोशल मीडिया हमारा एक मॉनिटरिंग सेल बोल के है। आप जो भी यहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक या ट्विटर में कुछ भी शेयर करते हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर एंटी सोशल एलिमेंट कुछ भी आपके पास यहाँ पे, मतलब आप अगर उसे लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिए, तो आप भी एक ऑफेंस के हिस्सेदार होते हैं, आप भी एक ऑफेंडर होते हैं। प्लीज़ इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है ठीक है उसे छोड़ दो, अगर रिसीव कर दिया तो उसे रिएक्ट मत कीजिए। तो सोशल मीडिया में अगर कोई बहुत से ऐड आते रहते हैं, ऐड आके कुछ जॉब के लिए या कुछ ऑफर के लिए ये करते रहते हैं। सोशल मीडिया में भी जो आते हैं वो भी सब सही नहीं रहते। उसके अंदर जो भी अगर फेक रहा तो आप प्लीज़ उसको लिंक को ओपन मत कीजिए, और उसके कुछ भी फाइनेंशियल जो ये रहता है उसके अंदर कुछ भी मत कीजिए। और मैं और ज़्यादा नहीं बोलता, और आपको हर एक बात बोल रहा हूँ, 1930 को आप याद रख लीजिए। अगर किसी को भी कोई फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो 1930 को इमीडिएट कॉल करना है। जो गोल्डन आवर में कॉल करेगा वो हम, मतलब जो अकाउंट को फ्रीज करके आपको पैसा वापस लाने की कोशिश करते हैं। बहुत से केस, अब बीदर जैसे हमारे बीदर में दिन को मिनिमम 5 से 10 पिटीशन आते हैं रिलेटेड साइबर क्राइम के, मतलब ऐसा फ्रॉड हो गया बोल के। सो और ATM और क्रेडिट कार्ड के आपके पर्स में रखते हैं तो पर्स के अंदर उसका पिन कोड मत लिख दीजिए प्लीज़। पिन कोड आपको पता रहना है या आपको कुछ याद रहना है। आप अगर उसके अंदर लिखे तो उसे समझो बहुत इजी होगा, जो चोर रहता है उसे बहुत इजी होगा। और रिसेंटली हमारे पास एक और एक केस हो गया है, आपका मोबाइल गुमा हो गया रहता, मोबाइल में फ़ोनपे का ऐप रहता है, वो फ़ोनपे का ऐप से अगर ये आपका मोबाइल गमे तो तुम इमीडिएट सिम लॉक कर दीजिए, आपका सिम लॉक कर दिए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नंबर रहता है। अगर वो सिम ने लॉक कर दिए तो क्या करते हैं, दूसरे इसको डाल के सिम जो फ़ोनपे को अनइंस्टॉल करके हर एक बार री इंस्टॉल करता है। री इंस्टॉल करने के बाद वही नंबर आता है, अकाउंट नंबर, OTP नंबर वही नंबर को आता है। वो आने के बाद वो नियरेस्ट CSP को जाके पूरे पैसे ले लेता है आपका।
सो प्लीज़ इसके लिए जो आपकी सावधानी ही आपकी रक्षा करता है। सो इसीलिए अगर आपको जैसे हमारे घर को ताला लगाते हैं वैसे हमारे अकाउंट को ये लगाना है। और प्लीज़ लेडीज़ लोगों को बोलता हूँ, आपका जो भी फेसबुक प्रोफाइल रहता है वो लॉक कर दीजिए। अननोन पर्सन नहीं देखना है, सिर्फ आपका फ्रेंड देखना है, वैसे आप लॉक कीजिए। और मैक्सिमम ज़्यादा तुम जितना आपका इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देंगे उतना आपको ट्रबल ज़्यादा होगा। सो इसीलिए आप सब ये बात ध्यान में रखते हुए आप साइबर क्राइम का शिकार नहीं होंगे, बल्कि एक आशा करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम आयोजन करे हुए जो टाउन इंस्पेक्टर सर और टाउन PSI सर को और हमारे SP सर, ADCP सर को सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶಾಹಿನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. आज के साइबर क्राइम और सोशल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़िम्मेदार बीदर शहर के हमारे और आपके चहेते SP साहब D किशोर बाबू साहब, एडिशनल SP साहब, DSP साहब और डाइस पे जो हैं ज़िम्मेदार स्कूल के ज़िम्मेदारान, कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान, मैं अक्सर कई प्रोग्राम में मैं शिरकत करता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ SP साहब को और उनकी टीम को। आज ये प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम मेरी लाइफ में शायद पहली दफ़ा कंडक्ट किया गया, क्योंकि फसिया मैडम, मैं उनकी भी तकरीर सुना, मैं समझता हूँ SP साहब भी शायद पहले सुन चुके हैं। बड़ा बेहतरीन अंदाज से आप बताएं, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। और क्या है, मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ, SP साहब आए हैं, आप तमाम लोगों का हमारा सबका इंतज़ार था। और ये साइबर क्राइम का विक्टिम मेरी फैमिली भी हो चुकी है, मैं बताना चाहता हूँ। एक एनी डेस्क जो है ऐप जो है, मेरे फैमिली के एक मेंबर्स को पूछा गया, मैं कॉम्प्लेंट भी किया हूँ, केस भी रजिस्टर हुआ है साइबर क्राइम में, 1 साल पहले की बात है। हम खुद भी इसके विक्टिम। आज ये आप जो प्रोग्राम आप जो लेके बैठे हैं, इसमें माँ बाप के साथ साथ आप टीचर हजरात की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और ये प्रोग्राम को जारी रखते हुए हर स्कूल में उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए और उनके जिम्मेदारों को भी बुलाया जाए कि जो है आज नौजवान बच्चा जितना बिगड़ रहा है सोशल मीडिया से, मोबाइल का इस्तेमाल तालीम के लिए करें तो ठीक है, लेकिन ये इस किस्म के जो गलत काम हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी जो है इसमें मुतासिर हैं। इसकी रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है। और SP साहब जो है यहाँ शुरुआत किए हैं। मैं जो है आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि हर स्कूल, जैसा कि विजडम स्कूल हैं, कैम्ब्रिज स्कूल हैं और हमारे ऑस्टर स्कूल हैं, शाहीन स्कूल है, तमाम स्कूलों के वहाँ पे जिम्मेदारों के साथ जो है वो स्कूल में ही उनके पेरेंट्स के साथ इसको जारी रखें। ज़रूर क्राइम कम होगा। मैं दोबारा जो है, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते SP साहब को दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। आपको, आपकी टीम को जो है इस क्राइम को ख़त्म करने का जो बेड़ा लिए हैं, हम पूरे नागरिक भी आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मैं मेरे 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। ವಿಜ್ಡಮ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಹಾಸಿಂ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. आज की इस अहम सभा के ज़िम्मेदार श्री किशोर बाबू सर, SP बीदर और DSP साहब, एडिशनल SP साहब, सर्कल साहब, PSI साहब और साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर साहब, सोशल मीडिया के इंस्पेक्टर साहब और यहाँ डाइस पर बैठे हुए हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारान, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान और यहाँ मौजूद
स्कूल के टीचर्स, लेक्चरर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बीदर पुलिस का। कल मुझे पीएसआई साहब और सर्कल साहब ने फ़ोन किया कि आपके स्टाफ को, स्पेशली लेडीज़ टीचर्स को पूरे, आप एक प्रोग्राम हम अवेयरनेस का कर रहे हैं, लाना है। तो मैंने दिल में ये सोचा कि हम जो कुछ कोशिश कर रहे हैं उसको कोई सैंक्शन और अथॉरिटी और पावर नहीं है, हम सिर्फ मॉरली बोल रहे हैं लोगों को। ये तो हमारे हाथ में पावर का हेल्प आ रहा है, पुलिस हमारे साथ आ रही है। तो मैं आज, हालांकि हमारे पास ड्यू टू फ्राइडे हाफ डे होता है, तो 3 मीटिंग में 45 मिनट में 3 जगह 3 कैंपसेस में करा और सबको बोला कि कंपलसरी आपको आना है, अगर ज़रूरत है तो हम आपको आने जाने का किराया देंगे, ओडी देंगे, हम क्या भी करेंगे, ये हमारा नीड ऑफ द आवर्स है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कामयाब नहीं हो रहे और पुलिस ये काम कर रही है, हम उसका अगर साथ देंगे तो हमारी कोशिश को 4 चांद लगेंगे और रिज़ल्ट आएगा। तो मैं सिर्फ तारीफ़ के लिए नहीं, इट इज़ राइट डिसीजन फॉर ऑन राइट टाइम। एसपी साहब का और उनकी टीम का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज का नीड ऑफ द आवर्स है, इस मुद्दे को आपने अटेंड किया है और ख़ास तौर से जहाँ पे हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस जहाँ पढ़ते हैं वो स्कूल कॉलेजेस हैं, जिनके रिलेशन थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज़ और हाउसेस से होते हैं। तो आपने इनको जो टारगेट किया है, मैं अश्योरेंस देता हूँ कि आपका हम पूरा इस चीज़ में हम पूरा सहयोग हमारा रहेगा। हम पेरेंट्स को बुलाएंगे। आपके जो अभी इंस्पेक्टर साहब ने बात किया, बहुत से नई चीज़ें हमको मालूम हुई, इन चीज़ों को हमें कम्युनिकेट करना है। ये सब चीज़ पुलिस इसलिए कर रही है, पब्लिक का सेफगार्ड, हमारा सेफगार्ड, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, हमारे लेडीज़ की सिक्योरिटी, हमारे पैसे का फ़िक्र है, हमारी जान का फ़िक्र है, हमारी इज़्ज़त का फ़िक्र है। तो ये पुलिस है, इसकी वजह से हम आज रात में सो रहे हैं, वो जागते हैं, हम सोते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, आज हम अमन से हैं। एक बात मैं आपके सामने ज़रूर कहूँगा कि हालात हम पर हमारी पूरी नज़र है, लेकिन बीदर में जो लॉ एंड ऑर्डर है, मैं सिर्फ मुंह देखे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने 2 इवेंट हैं करीब के, एक कल्याणी का इवेंट है और एक बीदर का दशहरे का इवेंट है। एसपी साहब और डीसी साहब ने जो उसको मैनेज किया है, उस इवेंट को शरपसंद लोग एक बहुत बड़े फसाद में बदल सकते थे, लेकिन आपने किसी को मौका नहीं दिया और इतना स्मूथली उसको कंट्रोल किया। मैं एसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं आभारी हूँ। उनका ये जहन है कि बीदर पीसफुल रहना, यहाँ कोई हेटेड स्पीचेस नहीं होना, यहाँ कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलना। मैं इस पर एसपी साहब को, बीदर पुलिस को और डीसी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मेरा दुआ है कि खुदा बीदर के लिए आपको देर तक यहाँ रखे, आपको हेल्थी वेल्थी रखे। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब इलेक्शन आ रहा है, अब इलेक्शन करीब है। आप देखेंगे सोशल मीडिया कितना तेज़ हो चुका है। दुनिया में सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंस ग्रुप है वो मूसाद का है, इस्राइली एजेंसी का, और उसका जो इंटेलिजेंस स्पाईवेयर है वो है पेगासस। उसका हेल्प तक इंडियन गवर्नमेंट लेता है। पेगासस का जो कुछ घोटाला हुआ वो सब आपको मालूम है, मैं वो डिटेल में जाना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने राइवल के लिए जो आईटी और सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और जिसमें हम अनपेड वर्कर बने हुए हैं,
उन्होंने तो पैसे कमा रहे हैं, उनके तो पेड वर्कर हैं, हमारे को पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं, हम फॉरवर्ड कर। आज मेरे को सुबह एक ऐसा मैसेज आया कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर हम ऐसे मैसेजेस अब जो शुरू हो चुके हैं, अगर हम ये करेंगे, बीजेपी के गुंडों को जूते मारो सालों को, तो ये मैं फॉरवर्ड नहीं करा। क्या ये कोई बना सकता है? क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है? तो इस तरह का अब कांग्रेस के लिए भी आएगा, फिर आगे चल के कम्युनिटीज़ के ऊपर वार होगा, पोलराइजेशन होगा, आइसोलेशन होगा। तो ये सब में हम लोग बकरे बने हुए। पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक से मिलना, पब्लिक को बताना आज बहुत अहमियत का काम है। तो ये अहम काम पुलिस कर रही है, हम पुलिस के साथ हैं। बहुत होशियारी से ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। सबके हाथ में महंगे महंगे मोबाइल हैं, लेकिन अल्लाह हमारे को बुद्धि देना चाहिए, इसको कैसा यूज़ करें। हम अगर इस मैसेज को मैं फॉरवर्ड करता तो क्या कुछ नहीं होता, आप सब जानते हैं। 5 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर हुकूमतों के तख्ते बदल रहे हैं सोशल मीडिया से। अभी राकेश टिकैत ने जो रोकर रात में इमोशनल स्पीच दिया, 3 साल पहले किसानों के लीडर ने, पूरे किसानों का मूवमेंट पलट गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। तो ये ताकत जहाँ है, वहीं ये गलत चीज़ के लिए, गलत इसके लिए बहुत बड़ा मीन है। हम इसका ज़रिया न बने, हम भलाई को फैलाने वाले, बुराई को रोकने वाले बने। इसी से उम्मीद है कि हमारे देश में अमन और पीस आएगा। थैंक यू वन एंड ऑल। ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. गुड इवनिंग ಎಲ್ಲರಿಗೂ. बीदर पुलिस के तरफ से आज साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के बारे में ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इस प्रोग्राम के मंच पर तशरीफ फरमा हमारे बीदर ज़िले के एडिशनल SP साहब, DYSP साहब, हमारे साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर, हमारे टाउन इंस्पेक्टर और सारे सिटीजन्स, और ये प्रोग्राम में जो अटेंड हो रहा है, आप सभी को भी बीदर जिला पुलिस की तरफ से हमारा नमस्कार। अभी तक हमारे ऑफिसर्स ने आप सभी को ये साइबर क्राइम के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में डिटेल में आप सभी को बताया है। मैं थोड़ा सम अप करके बताता हूँ। जब भी आपको लगता है कि आपको ये साइबर फ्रॉड हुआ, यानी आपके अकाउंट से पैसे गए और कुछ गड़बड़ हुआ, आप तुरंत 1930 को कॉल करिए। 1930 ये हेल्पलाइन का नंबर है जो आपका फर्स्ट रेस्पोंडेंट है। यानी आप कभी प्रॉब्लम होता है, आप क्या करते हो, 112 को डायल करते हो। जो भी रोड पे एक्सीडेंट हुआ और कोई इमरजेंसी हुआ, आप क्या करते हो, 112 को कॉल करने से पुलिस वहाँ इमीडिएटली पहुँचता है। ऐसा ही किसी साइबर क्राइम हुआ तो आप क्या करना है, पहले 1930 को कॉल करना है। तो क्या होगा, आपका मनी जो भी है, जहाँ भी है, वहाँ फ्रीज होता है, ताकि हमारे साइबर क्राइम का पुलिस उसको वापस लाके आपको दे सके। ये नंबर याद कीजिए, याद रखिए, 1930।
दूसरा, कोई लिंक जो आपको नहीं पता उस लिंक को नहीं दबाएं। कोई कॉल जिसका नंबर आपको नहीं पता उस कॉल को ना उठाएं। कोई आपको बार बार फ़ोन कर रहा है उसको रिजेक्ट कीजिए। कोई ऐप जो कहेगा कि आपको लोन देते हैं उस तरफ के कोई ऐप ना डाउनलोड कीजिए और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बसव कल्याण में हमारा आप जैसा टीचर ही एक लोन का ऐप बार बार वो लोन लीजिए और फिर बाद में पता चला कि ये फ्रॉड है और वो क्या करता है, बदकिस्मती से उन्हें सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसे हुआ कि ये सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमें लेना चाहिए वो हम नहीं लेते। ये जो बहुत बड़ा काम नहीं है, गाड़ी में चलते हुए हेलमेट रखना कोई बड़ी काम नहीं है। गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने से मोबाइल में नहीं बात करना तो बड़ा काम नहीं है। ड्रिंक्स करके गाड़ी चलाना तो बहुत बड़ा काम नहीं है। ये छोटे छोटे काम हम क्यों नहीं करते? ये ज़िंदगी किसका है? आपका है। आपको कुछ हुआ तो नुकसान किसका होता है? आपका फैमिली। तो इतना क्यों हम नहीं सोचते? सोचिए और सोचने के बाद थोड़ा इस तरफ इस डायरेक्शन में फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आए और बैठे, आप यहाँ बैठे, हम बात किए और ये फंक्शन हॉल के बाहर जाते हुए सब भूल गए। ऐसा नहीं, ये ज़िंदगी का सवाल है। तो याद कीजिए, याद रखिए और जो भी हमारे लोगों ने आपको कहा थोड़ा फॉलो कीजिए। शुक्रिया।